Okay. A very good morning to all of you. Yes, my dear students. Tell me. कल हमने कौन से essays cover किए? Yes. कौन से essays कल हमने cover किए? Come on. 5. सबसे पहले we began with which standard in the morning? 501. Okay? 501 हमको क्या कहता है? It speaks about 3 specific items and specific considerations for these specific items. Which are the 3 items which are covered by essay 501? Inventory, litigation and claims, segment information. Okay, yes. Then, क्या हम specific assertions के बारे में focus कर रहे हैं ऐसे 501 में? Absolutely yes. When we speak of inventory, which are the 2 assertions we are focusing on? Existence and condition. Then, yes, litigation and claims is focusing on identifying, मतलब completeness assertion, right? Okay. Then उसके बाद next क्या था? Segment information के बारे में we are focusing on presentation and disclosure. Proper disclosure होना चाहिए. Clear? Okay, ठीक है. Then उसके आगे हमने inventory में क्या देखा? Inventory में हमको क्या focus करना है? Only on material inventory. What are the audit procedures that the auditor has to do? Come on. Observe. Yes or no? Then evaluate management instructions. Then inspect, very good, and test count. बराबर है ना? Okay, yes. उसमें अगर management ने हमको रोक लगाई तो there will be limitation on scope. अगर auditor को, if auditor is unable to visit on a particular date, in that case he will plan his audit procedures on alternate date. बराबर है? Yes, okay. But if it is impracticable for him to attend the physical counting, in that case what he will do? Alternate procedures. अगर management रोक लगाती है तो limitation on scope, we will modify the audit report. Clear? Yes, when we speak of modification of audit report, what does it mean? Come on. Yes, what is it known as? When we qualify an audit report, there are 3 types. There are 3 types when we modify the audit report. One is qualified opinion, adverse opinion, disclaimer opinion. बराबर है ना? Yes. जब गलतियां बड़ी होगी, adverse opinion. अगर गलतियां छोटी होगी, qualified opinion. अगर हम opinion ही नहीं दे पा रहे, then disclaimer opinion. बराबर है ना? Yes. उसमें हमने table देखा था, material and pervasive, material but not pervasive. याद आया? Yes. Okay. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा ऐसे देखा? ऐसे 550 मतलब क्या? 505. व्हाट डज इट मीन? कि अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 लाख दिख रहा है तो यस, तो हम जो कंफर्मेशन लेंगे उसका जवाब भी 5 लाख ही आना चाहिए और बीच में इट शुड बी अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. इट इज नोन एज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. यस और नो? Yes? Okay. So, external confirmation is a direct written response received by whom? Received by whom? Auditor. From whom? Third party. Also known as confirming party. Okay? In what form? Paper, electronic or any other medium. Okay? It should be a direct response directly to the auditor. It should be in written form. Clear? Okay? Yes. फिर आगे. Next हमने क्या देखा? There are 4 types of external confirmation requests. Which are they? Positive request, negative request, non-response request, exception. What is meant by positive request? चाहे आप agree or disagree, you have to respond. Very good. Is it more persuasive, less persuasive? More persuasive. ठीक है. Negative request. Only if you disagree, you have to respond. Then it is more or less persuasive? Less persuasive. Negative request is used only if. Come on. Only if. सोचो, देखने की जरूरत नहीं है. Very good. RMM कैसा होना चाहिए? लो या हाई? लो. अगर RMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो होगा तो नेगेटिव रिक्वेस्ट चलेगा. Then internal control is
इफेक्टिव, बराबर है। देन अमाउंट्स कैसे होने चाहिए, स्मॉल अमाउंट्स होने चाहिए, बराबर है। ओके ठीक है। देन दीज आर द मेजर 3 पॉइंट्स जहां पे हम यूजुअली नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजते हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिटर्स होगा तो हम कौन सा रिक्वेस्ट भेजेंगे, यस यस, और लार्ज क्रेडिटर्स होंगे तो पॉजिटिव रिक्वेस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके ठीक है, ये सबसे मेजर बात थी। ओके यस, अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ अगर ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है, ओके यस, तो वहां पे हमने क्या देखा, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, राइट। ही हैज टू डिजाइन अ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यस और नो। तो उसके स्टेप्स क्या है? नंबर 1, वेरी गुड, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी सॉट। हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो हमें पता होना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट confirming party, then designing confirmation request, then sending confirmation request. Are there certain factors which determine the design of confirmation request? Yes, are there certain factors? Which are they? Come on. मैनेजमेंट ने परमिशन दी है क्या? देन मतलब मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि एक्सटर्नल पार्टी को लगे कि हाँ मैनेजमेंट इज ओके, हम इसका जवाब दे दो। डू यू अंडरस्टैंड? सो देयर शुड बी मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। देन कम ऑन, हम whenever we are sending an external confirmation, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, बराबर है ना। देन assertions क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, बराबर है कि नहीं। देन प्रायर एक्सपीरियंस क्या है अपना उस कंफर्मिंग पार्टी के साथ, यस और नो। फिर सामने वाली पार्टी है वो विलिंग टू रिस्पॉन्ड है या नहीं है, समझ में आया? ओके यस, गेटिंग इट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऐसे हमने कौन सा देखा, कम ऑन, 510, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐसे था स्टैंडर्ड। ओके 510, 5110, 1 stands for beginning, 1 stands for initial, so initial audit engagements. ओके सो यहां पे 2 केसेस कवर्ड है। कौन से केसेस? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रायर पीरियड में ऑडिटेड नहीं था, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रीवियस ऑडिटर कोई और था, हमें पहली बार अपॉइंट किया गया है। मतलब इन शॉर्ट हम इस साल उसका पहला ऑडिट करेंगे, बराबर है ना। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि मैम हमको तो सिर्फ इस साल से मतलब है, पहले साल हम ऑडिटर हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बताती हूँ क्या फर्क पड़ता है, मैं बताती हूँ बच्चों। यस कम ऑन, यू गाइस टेल मी। लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस मतलब दिस ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस, बराबर है ना। तो अगर पिछले साल का ही स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं था, अगर उसमें कुछ गलतियां है, तो इस साल के ट्रांजैक्शंस अगर हम करेक्ट भी रिकॉर्ड करें, करेक्ट भी डिस्क्लोज करें, तो क्लोजिंग बैलेंसेस में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, right? Okay, yes, so auditor has to perform certain procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to opening balances. Yes or no? Yes? Okay, ठीक है। अब अगर लास्ट ईयर का लास्ट ईयर के स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना है? सिग्निफिकेंट मैटर कोई होगा तो उसको डिटेल में उसको एनालिसिस करना पड़ेगा इस साल भी। सेकेंड पॉइंट उसको मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि सुनो मैनेजमेंट, आप लिख के दो कि लास्ट ईयर का जो स्टेटमेंट है ना वो अनऑडिटेड है भाई। कल जाके अगर कोई बड़ी गलती आ गई तो हमारे ऊपर रडार नहीं आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओके सो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, take the management representation from the management stating that the prior period financial statements are unaudited. Clear? Okay, then next. Yes, next audit report में ऑडिटर को क्या करना है? कौन से पैरा में मेंशन करना है?
अदर मैटर पैरा में ऑडिटर लिखेगा, क्या लिखेगा कि प्रायर पीरियड स्टेटमेंट्स, ओके, मुझे इस ईयर का ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, मैं इस साल का ऑडिट करने वाला हूं, पर इस साल का ऑडिट करते वक्त ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। वो मैंने चेक किया है, पर पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अनऑडिटेड है, ओके, तो उसमें अगर कोई मेजर मिस्टेक होगी, मैंने ट्राई किया है कि मैं कवर करूं, बट छूटने की संभावनाएं हैं। क्लियर? ओके, यस, ठीक है। देन फर्दर नेक्स्ट हमने क्या देखा था? यस, 510 के बाद 520, 2 और 2 5 नहीं होना चाहिए, बराबर है ना? यस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ओके, उसमें मैंने आपको फ्लो समझाया था, बराबर है ना? एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोसीजर्स? Substantive procedures. Substantive procedures are of 2 types. Checking of transactions, मतलब vouching verification and analytical procedures. Okay? Yes, analytical procedures क्या बोलता है? Yes, 2 चीजें. Fluctuations को ढूंढो और fluctuation क्यों आया उसका investigation करो. Yes or no? Yes or no? Okay, ठीक है। अब जब हम analytical procedures करते हैं तो 2 चीजें करते हैं. We either compare the data or we establish relationship among different items in the financial statements. Clear? Yes? Okay? Yes. Okay. So come on. Let's quickly go ahead with further standard today. Yes. Yes. अब मुझे बताओ अगर आपको खून की जरूरत होगी तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? ब्लड ग्रुप, करेक्ट है ना? राइट? अब ब्लड ग्रुप में भी क्या हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में से ही कोई रहे, खून ना, खानदान का खून खानदान में ही रहे, बराबर है ना? दिस इज नथिंग बट SA 550. इस फोकसेस ऑन खून का रिश्ता, ओके, जहां रिश्ता मतलब वो रिलेटेड होंगे, इसलिए SA 550 स्टैंड्स फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंड, ओके, आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल व्हिच विल मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि इतना क्यों जरूरी है हमें, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, मानो कि एक कंपनी है, ओके, यस, नाउ दिस कंपनी, ओके, ये कंपनी सप्लाई कर रही है, ओके, अब कंपनी जब सप्लाई कर रही है, मानो कि वो होल्डिंग कंपनी को भी सप्लाई कर रही है और वो अदर पार्टी को भी सप्लाई कर रही है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, यू टेल मी वन इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी प्रायोरिटी से किसको सप्लाई करेगी? होल्डिंग कंपनी को, बराबर है ना? अगर प्राइस वेरिएशन करना चाहेगी तो सबसे पहले किसके साथ करेगी? होल्डिंग कंपनी के साथ करेगी। मतलब जहां पे भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आएगा, जहां पे भी रिश्ते का सवाल आएगा, क्या हम ज्यादा हर चीज में तोड़ मरोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होगा? यस। Do you understand? So wherever there are transactions involved with respect to related party, in that case, yes, absolutely yes, the risks of material misstatements increases. Do you understand? Okay, yes. अब मुझे बताओ कौन सा स्टैंडर्ड है जो रिलेटेड पार्टी पे फोकस करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Yes? Very good. Very good. AS 18 and in AS 24. Okay. ये ठीक से क्यों नहीं दिख रहा आज? प्रोजेक्टर? हाँ, ये लाइट ये बंद कर दो ना, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। मैं और दूसरा कलर लूंगी तो इतना भी नहीं दिखेगा आप लोगों को। रेड है तो वो रिफ्लेक्ट तो हो रहा है। यस, अब बेटर है? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। Yes, so AS 18 and IND AS 28, sorry 24, okay? Yes, अब हमको क्या बोल रहे हैं? Yes,
हमको क्या बोल रहे हैं ये कि जो भी आपके रिलेटेड पार्टी है, जो भी आपके रिलेटेड पार्टी है, उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, उनके साथ आपने कौन से प्रकार के ट्रांजैक्शंस किए हैं. ओके, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यहां पे लिख देती हूं, नेचर ऑफ रिलेशन एंड अमाउंट इन्वॉल्व जो है. ओके, AS18 इंडेस बोलते हैं कि आप क्या करो, ये 3 चीजें आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, ये डिस्क्लोज आपको करनी ही पड़ेगी. अब मुझे एक बात बताओ. ओके, हम ऑडिट किसका कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. यस और नो, यस और नो, हम ऑडिट किसका कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं बच्चों, बराबर है कि नहीं. अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त सबसे पहले वी हैव टू कॉम्प्लाई विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. यस और नो, यस. सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कॉम्प्लाई करना मतलब अगर आप कंपनी हो तो आपको किसको कॉम्प्लाई करना है, शेड्यूल 3, बराबर है ना, कंपनीज एक्ट का, राइट. अब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कॉम्प्लाई करना है, तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी FRF का पार्ट है क्या, यस और नो. तो क्या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, यस. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि ये जो FS है ना, ये FS मैनेजमेंट ने बनाया है, मैनेजमेंट ने जो बनाया है ना, वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है, मतलब सारे AS को कॉम्प्लाई किया है. तो एज एन ऑडिटर, अपनी ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम ऑन, एज एन ऑडिटर अपनी ड्यूटी ये हो जाएगी कि क्या रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया है या नहीं किया, बराबर है कि नहीं. यस, अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट. ओके, यस. अब एस में क्या बोला है, आपको क्या क्या डिस्क्लोजर करना है, नेचर ऑफ रिलेशन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अमाउंट इन्वॉल्व. मतलब यहां पे ऑडिटर की ड्यूटी 2 चीजों के बारे में हो गई. ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज फर्स्ट. पहले रिलेटेड पार्टी को क्या करो, आइडेंटिफाई करो. जब आप रिलेटेड पार्टीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो क्या होगा, तभी तो क्या होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड विद द रिलेटेड पार्टी. यस और नो, यस. ओके, सो ऑडिटर की, एज एन ऑडिटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, देखो क्या मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो कि आपकी कंपनी ने 22% किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया. ओके, यस. अगर आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी में 22% इन्वेस्ट किया तो यहां पे कौन सा रिलेशनशिप हो गया, क्या वो अपना एसोसिएट बन गया, यस और नो, एसोसिएट बन गया, यस. ओके, 20% से ज्यादा तो वो अपना एसोसिएट बन गया. ओके, नो प्रॉब्लम. अब एसोसिएट बन गया, ओके, एसोसिएट बन गया, ओके, ठीक है. और अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर ही नहीं किया तो, बराबर है ना, चलेगा नहीं चलेगा. तो ऑडिटर को चेक करना है, चेक करो एज एन ऑडिटर. सोचो रिलेटेड पार्टीज आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, चेक द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, बराबर है ना, आपकी कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया है. ओके, क्योंकि वहां पे होल्डिंग कंपनी पता चलेगा, करेक्ट. आपके कंपनी ने कहां पे इन्वेस्ट किया है, वहां से आपको जॉइंट वेंचर है क्या, एसोसिएट है क्या, सब्सिडियरी कंपनी है क्या, ये पता चलेगा. यस और नो, यस और नो. ओके, ठीक है. इतना ही नहीं, शेयर रजिस्टर चेक करो, यस और नो, शेयर रजिस्टर चेक करो, बराबर है ना, कि किसके पास कितने शेयर्स है, राइट. यस और नो, कि क्या कोई कंट्रोल एक्सरसाइज करने के कैपेसिटी में है या नहीं है. समझ में आया. ओके, यस. देन नेक्स्ट, देन उसके बाद आप क्या क्या चेक कर सकते हो, कम ऑन यू टेल मी. इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करो, बराबर है कि नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करो, ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच एन ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई कि क्या कोई रिलेटेड पार्टी है
या नहीं है. जब ऑडिटर आइडेंटिफाई कर पाएगा तभी तो डिस्क्लोज कर पाएगा. बराबर है ना. सो एफएस ट्रू एंड फेयर कब होगा? Only when all the related parties are identified and adequately disclosed. Clear? Easy है? बहुत easy है? Okay? Yes. Okay? एक आर्टिकल आया था इकोनॉमिक टाइम्स में. इट इज अ टाइम कौन से साल में? 2019 में. ओके, हिस्ट्री हो गया था दैट मेजर ऑडिटर्स वेर रिजाइनिंग फ्रॉम देयर असाइनमेंट्स. फिर रीजन पूछा गया. ओके, रीजन वाज नॉन डिस्क्लोजर. ध्यान से सुनना. नॉन डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट? इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स बाय मैनेजमेंट. Non-disclosure of inter-corporate investments by management. Okay? Management auditor को information ही नहीं दे रहा था. कैसी information? इंटर कॉर्पोरेट मतलब क्या? आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपके कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया है. बराबर है. मतलब जो इंटरनल रिलेशंस है विद इन द कंपनीज, विद इन द नेटवर्क ऑफ द कंपनी. ओके, दिस वाज नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर. ओके, फिर ऑडिटर को रिजाइन करने की क्यों बारी आई? बिकॉज वेरेवर एंड व्हेनेवर, ओके, वेरेवर एंड व्हेनेवर रिलेटेड पार्टी इज इन्वॉल्व्ड, ओके, उसका नंबर 1 रिस्क ज्यादा है. फिर इतना सारा कॉम्प्लायंस है, इंडेस का, एएस का, यस और नो? यस. तो उसका रिस्क क्या है? हमेशा ज्यादा है. ऑडिटर को उसको रिलेटेड पार्टी के हर ट्रांजैक्शन को थरली चेक करना पड़ता है. अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही तो ऑडिटर को कैसे पता चलेगा ये रिलेटेड है कि नहीं है? बराबर है ना. अगर ऑडिटर को पता ही नहीं चला कि ये रिलेटेड है या रिलेटेड नहीं है तो विल ऑडिटर बी एबल टू गो इनटू डिटेल्स? कम ऑन. क्या ऑडिटर और डिटेल में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा. क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देख पाएगा? नहीं देख पाएगा. बराबर है ना. क्या उसके अमाउंट्स को चेक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्लियर? यस, 100%. एवरीवन ओके? यस, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो ऑडिटर को चेक करना है. इसके बारे में कौन सा ऐसे बात करता है? ऐसे 550. खून का रिश्ता, खून ट्रांसफर कर रहे हो. बराबर है ना. खून चूस चूस के तो रिश्तेदार अपने से बड़े 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 होते जाते हैं. बराबर है कि नहीं? यस, यस. सो ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. क्लियर? ओके, यस. अब चलते हैं आगे. Definition of related party. Yes, my dear students. Okay. रिप्लाई करते रहो. आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम वेटिंग फॉर योर चैट्स. ओके, यस, कम ऑन. डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. अब बताओ, रिलेटेड पार्टी क्या ऐसे 550 में डिफाइन किया गया है? मैंने क्या बोला? AS 18 के हिसाब से चेक करो. समझ में आया? सो रिलेटेड पार्टी, ध्यान से सुनना, has not been defined in in standards on auditing. It is defined in financial reporting framework. ऐसा ही कुछ और एक कॉन्सेप्ट के साथ था. वेरी गुड. मटीरियलिटी. मटीरियलिटी भी स्टैंडर्ड में डिफाइंड नहीं है. इट इज डिफाइंड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, उसका डेफिनेशन नहीं होगा, फिर आपको इस स्टैंडर्ड के पास आना है. समझ में आया? ओके, यस. सो रिलेटेड पार्टी, okay, it has to be defined in FRF. okay, yes, as per FRF. अगर वो defined नहीं है FRF में, then you have to come to standard on auditing. With standard ऐसे 550. ऐसे 550 क्या बोलता है? एक ऑडिटर है और इस ऑडिटर का एक क्लाइंट है. अपनी टीम है. बराबर है ना. आई एम द ऑडिटर, यू आर माई ऑडिट टीम. यस, ओके. तो अपनी टीम है और अपनी टीम का एक क्लाइंट है. ओके, यस. अगर अपने क्लाइंट पे फोकस कोई पर्सन कंट्रोल कर सकता है, मतलब अपने क्लाइंट में कौन काम करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगा, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है
या उसका अपने क्लाइंट पे कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, इन दैट केस दीज टू पार्टीज विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. सो नंबर 1 स्टैंडर्ड क्या बोलता है? रिलेटेड कौन रहेगा? अ पार्टी which is in capacity of controlling the entity or exercising significant influence, then that particular party shall be treated to be related party. Clear? Yes? Yes or no? Okay? Yes. अब अगले सिचुएशन में हम ऑडिटर है, ओके, हमारा क्लाइंट है. I'll just hide myself, just 1 minute. यस, हम ऑडिटर है, हमारा क्लाइंट है. अगर किसी थर्ड पार्टी पे हमारा क्लाइंट किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल या उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों पार्टी रिलेटेड पार्टी है. क्लियर? यस और नो? ओके, यस. मतलब हम जिस पे कंट्रोल एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओके, और जो हम पे कर रहा है, इन दैट केस हमें रिलेटेड पार्टी कहा जाएगा. ओके, ठीक है. फिर अगर कॉमन कंट्रोल है, ओके, फॉर एग्जांपल कॉमन ओनरशिप, जॉइंट वेंचर, हम दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड? यस. सो जॉइंट वेंचर में कॉमन कंट्रोल है या नहीं? Yes. So now tell me, will it be treated as related party? Absolutely yes. Okay? उसको related party treat किया जाएगा. Then owned by close family members. जैसे कि for example मैं classes ले रही हूँ. Yes. Okay? ठीक है. अब मैं classes ले रही हूँ. Okay, no problem. अब my brother is running a printing press. बहुत interesting. My brother is running a printing press. तो अब मुझे बताओ, क्या हम सेम फैमिली मेंबर्स एक ही बिजनेस को मिलके चला रहे हैं? Yes or no? Yes or no? So ऐसे कोई बिजनेस होगा जो owned by close family members होगा. In that case, it will be treated as common control and related party माना जाएगा. Okay? Yes, इंडिया में स्पेशली अगर आप देखोगे तो फैमिली मेंबर्स काफी एक दूसरे के साथ मिलके बिजनेसेस करते हैं, राइट? ओके, देन कॉमन की मैनेजमेंट मतलब क्या? प्रिंटिंग प्रेस का डायरेक्टर है और सेम एक्सपर्ट क्लासेस का भी डायरेक्टर है, बराबर है, राइट? तो क्या कॉमन मैनेजमेंट है? यस. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. आर सेम पर्संस टेकिंग डिसीजंस एट बोथ प्लेसेस? यस. विल दे बी रिलेटेड? यस. समझ में आया? ओके, sure? 100%? Yes. So this is nothing but definition of related party. किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ, मोटा मोटी हमने क्या देखा कि रिलेटेड पार्टी क्या स्टैंडर्ड में डिफाइंड है? नहीं. वी हैव टू रेफर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में उसका डेफिनेशन होगा. सो यू हैव टू गो बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. व्हाट इज मेंट बाय एफआरएफ? अगर आप कंपनी हो आपको शेड्यूल 3 एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर आप बैंक हो तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर आप इंश्योरेंस हो तो आईआरडीए के हिसाब से आपको करना पड़ेगा. अगर आप टेलीकॉम कंपनी हो तो ट्राई के हिसाब से आपको एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड? यस. सो दीज आर द डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर एंटिटी ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल हो जाएगा. क्लियर? ओके, यस. देन अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिफाइंड नहीं है, इन दैट केस आपको इस स्टैंडर्ड को रेफर करना है. ओके, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ऐसी कोई थर्ड पार्टी जिसपे हम कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं इज अ रिलेटेड पार्टी. ओके, या ऐसी कोई थर्ड पार्टी जो हमारे ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, इट विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी. या तो फिर कॉमन मैनेजमेंट होगा. तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कॉमन ओनरशिप, जॉइंट वेंचर. नंबर 2 if it is run by close family members. Okay, and third common key management. Any doubts? Okay, yes. अब आगे, अब बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने वाली हूं. अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. ओके, यस. अब बताओ मुझे, इंश्योरेंस है, LIC जो है वो कौन ओन करता है?
गवर्नमेंट ओन करता है, बराबर है। अब उसका आईपीओ आने वाला है, पता है ना? यस, ओके, ठीक है। मतलब वो क्या करने वाले हैं? आईपीओ आएगा। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल लैंग्वेज में बताओ, मतलब क्या आप और मैं उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे? बराबर है ना? मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप चला जाएगा, हमारा ओनरशिप आएगा। यस और नो? ओके, ठीक है। अब ऐसे जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज है, ओके, इसमें क्या होता है? इतने सारे इंडिया में स्टेट्स हैं, उनका गवर्नमेंट है, और बीच में दिल्ली में बैठा है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर है कि नहीं? यस और नो? ओके। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके, जैसे रेलवेज है, बराबर है ना? यस, देन यू हैव दिस LIC है जो अभी चल रहा है, बाद में उसका आईपीओ आने वाला है, बराबर है ना? क्या ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज है? यस और नो? ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना ओनरशिप रखते हैं? यस, बराबर है कि नहीं? अब स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इट इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन जुडिशियरी। यस और नो? यस और नो? बराबर है। तो क्या हम इसको कॉमन कंट्रोल कह सकते हैं? क्या हम इनको रिलेटेड पार्टीज कह सकते हैं? सोच के जवाब देना। नो? Who say? How many say yes? How many say no? Yes. How many say yes? How many say no? क्या ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है? मैं बताती हूं आपको। सच गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज, ओके, से फॉर एग्जाम्पल एंटिटी 1, एंटिटी 2, 3, 4, इनका सेम मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है, बराबर है ना? गवर्नमेंट ओन्ड है मतलब सेम मैनेजमेंट है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो इनको रिलेटेड नहीं माना जाएगा। दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, यस, स्पेशली उन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ये एक्सप्लेनेशन किया है कि बिकॉज सी हमने देखा है ना कि कॉमन ओनरशिप रहेगा, तो क्या वो रिलेटेड है? हाँ। तो अपने मन में सवाल आएगा कि मैम इन गवर्नमेंट एंटिटीज में तो कॉमन ओनरशिप है, बराबर है ना? फिर ये कैसे होने चाहिए? ये रिलेटेड हो जाएंगे, बराबर है ना? Then these entities are actually not related to each other. Okay, they will be related. They will be treated as related only if अगर वो एक दूसरे के साथ कोई significant transaction करते हैं। सिर्फ transaction नहीं बोला है, क्या बोला है? significant transaction. ओके, या तो यू शेयर रिसोर्सेस, मतलब क्या है? आप मिल के प्रोडक्शन करते हो। ओके, देखा है ना बड़ी बड़ी क्रेन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स देखा है रास्तों पे, घाटों पे? यस और नो? यस। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर शेयरिंग देयर रिसोर्सेस। अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी एक दूसरे से अपने रिसोर्सेस शेयर कर रही है, ओनली देन उन दोनों को रिलेटेड माना जाएगा। क्लियर? यस, 100%? ओके, श्योर? यस। सो कम ऑन, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज are not related to each other. They would be treated as related to each other only in two circumstances. Number one, significant transaction. If one government owned entity, okay, yes, government owned entity conducts significant transaction with other government owned entity, then the both shall be treated as related to each other. Clear? Yes. Number two, if one government entity shares its resources with another government controlled entity, then these both entities would be treated as related to each other. Clear? Okay? Yes. अब चलते हैं आगे। अब ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले बताओ, हमने जो समझा है अब तक, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर को देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। करेक्ट? यस। ओके, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या उनका डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है? बराबर है कि नहीं? यस और नो?
ओके यस। सो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले ऑडिटर की जिम्मेदारी है कॉम्प्लाई करो। किसके साथ कॉम्प्लाई करो? अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के साथ कॉम्प्लाई करो। अब अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ओके यस, ये कहां पे बताया गया है हमको? AS 18 और इंड AS 24 में बताया गया है। डू यू अंडरस्टैंड? AS 18 एंड इंड AS 24 में बताया गया है कि आपको क्या डिस्क्लोज करना है। आपके रिलेटेड पार्टी के साथ व्हाट आर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, देन आपने उनके साथ कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं और कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस किए हैं, हाँ या ना? बराबर है? यस। अब ये रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए? कंप्लीट, बराबर है ना? ऑडिटर को क्या चेक करना है कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया। मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा असर्शन एप्लीकेबल है? कैन आई से कंप्लीटनेस? यस और नो? सो ऑडिटर हैज टू चेक क्या ये कंप्लीट है या नहीं है। और जब हम ट्रांजैक्शन और अमाउंट्स की बात करें, ओके, जब हम फिगर्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो वो कैसे होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए। तो यहां पे कौन सा असर्शन है? करेक्टनेस। यस और नो? समझ में आ रहा है? यस। सो एज एन ऑडिटर सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप कॉम्प्लायंस करो। कॉम्प्लायंस किसके साथ करो? अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के साथ करो। Whenever we speak of related party, AS 18 and in AS 24 has to be complied with. Clear? अब in AS 24 AS 18 कहता है कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए। मतलब सारे के सारे रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज आइडेंटिफाई करने चाहिए मैनेजमेंट ने। यस, ठीक है। फिर जो आपने आइडेंटिफाई किया है वो आपको अच्छे से डिस्क्लोज भी करना है आपके बुक्स ऑफ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। समझ में आया? यस। सो देयर शुड बी करेक्टनेस इन द डिस्क्लोजर ऑल्सो। एनी डाउट्स? ओके, अब आगे जो मैं समझा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उनका क्या कहना है कि आप इंड AS के हिसाब से इन चीजों को डिस्क्लोज करो, इन चीजों को डिस्क्लोज करो। मतलब यू कॉम्प्लाई विथ AS 18 एंड इंड AS 24, बराबर है ना? सो इट स्पीक्स अबाउट कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क वेयर यू शैल बी कॉम्प्लाइंग विद द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। समझ में आया क्या? यस, ओके। पर जब हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक्चुअली देखते हैं कि क्या ये करेक्टली रिकॉर्डेड है, क्या ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, जब ये सारे के सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको अच्छे से डिस्क्लोज कर पाएंगे, तभी हम सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऐसा कह पाएंगे। यस और नो? बराबर है ना? मतलब इस कंप्लीटनेस और करेक्टनेस को चेक करना, मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को चेक करना, कॉम्प्लाई करना। यस और नो? यस और नो? यस। तो मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूं इस ऐसे को मैंने करने की कोशिश करी है। ओके, यस। कंफ्यूज होने का कोई भी कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस। इसलिए मैंने ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको पहले समझाए। ओके, अब मैं स्टैंडर्ड के बीच में आपको कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क समझाती तो आप समझे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम हम फ्रेमवर्क समझे कि स्टैंडर्ड समझे? बराबर है ना? यस, ओके। चलो आगे आगे। अब ऑडिटर ने सबसे पहले कॉम्प्लायंस देख लिया, ओके, ठीक है। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाथ में लिया, देख लिया कि मैनेजमेंट ने ठीक से आइडेंटिफाई किया है नहीं, डिस्क्लोज किया है कि नहीं, ठीक है। अब ऑडिटर को भी तो ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। किस प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे? अंडरस्टैंड। Number 1, he has to identify related parties. He will go through share register, investment register, बराबर है कि नहीं? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए हैं, yes, he will try to identify कि related party है या नहीं। उसके बाद उनके साथ कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस किए हैं। ओके, से फॉर एग्जाम्पल हम ऑडिटर है, अपना एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट की पॉलिसी है कि किसी को भी उधार पे माल बेचने का नहीं, जो भी है वो कैसे करने का?
यस कैश बेसिस पे, ठीक है। अचानक से इस साल उसने एक पार्टी को 5%, एक पार्टी को क्रेडिट पे माल बेचा, ओके यस, उसने एक पार्टी को क्रेडिट पे माल बेचा। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या सवाल आता है, किसको दिया? यस कोई रिलेटेड पार्टी है क्या? बराबर है कि नहीं? ओके यस, देन you have to ascertain the nature of transactions. Case number 2, okay, lockdown में हुआ, okay, COVID effect, okay, the entire industry, economic industry is affected, yes or no? ठीक है। फिर इस MNC ने क्या सोचा, देख अपने को नया मार्केट में एंटर करना पड़ेगा, okay, yes, we have to break the taboo and we have to enter the new market. तो let's do one thing. आज तक हमने किसी को क्रेडिट पे नहीं दिया है, ये नए मार्केट में हमको एंटर करवाएगा, इस पार्टी को हम क्रेडिट पे माल बेच देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस, सो क्या ये रिलेटेड है या नहीं है? नो, हियर आवर इंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट इज वेरी डिफरेंट। डू यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू एसेस द ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यू हैव टू एसेस द ट्रांजैक्शन, देन आपको रिस्पॉन्ड करना है टू दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ओके यस। अब जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हाई या लो? ऑलवेज हाई, ओके यस हियर। सो रिस्क ऑफ, फिर अगर हम आरएमएम की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी, तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होगा कि आइडेंटिफाई करना चाहिए था, आपने नहीं कर पाए, ओके यस, या आइडेंटिफाई किया है पर आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए, बराबर है कि नहीं? सो फेलियर टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और फेलियर टू अकाउंट फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। डू यू अंडरस्टैंड? यस, क्लियर? ओके ठीक है। अब जब हम रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, ओके तो सबसे पहले अपना क्या दिमाग में आता है कि झोल चपाट रहेगा, बराबर है ना? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ओके ये हम ऐसे 240 में जब हम फ्रॉड का चैप्टर देखेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके यस, देन ओके अब आगे। सो एज एन ऑडिटर इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की तरफ आपको क्या चेक करना है? नंबर 1, कॉम्प्लायंस हुआ है या नहीं हुआ, क्लियर? यस। सेकंड, ऑडिट प्रोसीजर्स हुए हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स उसको करने हैं, कैसे देखना है कि उसको आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टीज, ओके यस, इफ ही फेल्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, बराबर है कि नहीं? ठीक है। फिर आइडेंटिफाई किए हुए रिलेटेड पार्टी को ठीक से एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना, यस और नो? अगर वो कर पाया तो ठीक, अगर वो नहीं कर पाया तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्लियर? यस एवरीवन, ओके ठीक है। देन फिर हमको देखना है कि क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है या नहीं, क्लियर? ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट ने ठान ही ली कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे, तो ऑडिटर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। क्या ऑडिटर के हाथ में कुछ है? कुछ भी नहीं है, okay, so because of certain inherent limitations of audit, क्योंकि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देगा ऑडिटर को, अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया ऑडिटर को तो ऑडिटर क्या ही कर लेगा, बराबर है ना? ऑडिटर क्या ही कर लेगा? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क of material misstatements with respect to related party. Which are the inherent limitations? Number 1, मैनेजमेंट को ही पता नहीं था, मैनेजमेंट के पास ही इतना स्किल्ड नहीं है, मैनेजमेंट के पास ही इतना नॉलेज नहीं है, ओके आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रिलेटेड है या नहीं है। अगर मैनेजमेंट को खुद ही अनअवेयर है, अगर मैनेजमेंट को खुद ही पता नहीं है कि ये रिलेटेड पार्टी है या रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो क्या ही वो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देंगे? यस और नो? राइट? सो मैनेजमेंट अनअवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने मैनिपुलेट किया, एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब क्या? मैनिपुलेशन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट ने ही हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ओके? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क लेके चलो, बराबर है ना? क्वेश्चनिंग माइंड एंड बीइंग अलर्ट टू
बराबर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है. But professional skepticism can be different with different people. बराबर है ना? क्या उसका कोई definition है? क्या उसको हम define कर सकते हैं? क्या हम उसको calculate कर सकते हैं? नहीं. So these are nothing but the inherent limitations of audit, because of which always risk prevail with respect to related party transactions. Clear? Oh, so sorry. Clear? Everyone? Yes? So is it simple? The standard is easy? Yes? Okay. So chalo, I want you to take this down. Yes. Please take this down. Huh. Excuse me, I'm so sorry. You can just write down auditor, client, third party और वो arrows कर दीजिए. ये मैंने जानबूझ के किया है ना, पिक्चर्स हमेशा हमारे दिमाग में याद रहते हैं. आप प्रोवाइडेड आप इसको रेगुलरली रिवाइज करो. इसके बाद वाला ऐसे तो बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग.
मैंने जगह मैनेजमेंट करने के लिए ABC ऐसे अलग अलग लिखा है, आप एक के नीचे एक लिख सकते हो। मैंने प्लेस मैनेजमेंट करने के लिए ऐसे लिखा है। हाँ, very important for case studies. इस स्टैंडर्ड को मैं जानबूझ के नहीं लिखा रही, क्योंकि दी स्टैंडर्ड्स आर रिटन इन अ स्मॉल पेज, मतलब ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स तो आपकी बुक में है नहीं, बराबर है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, आप इनको समझ पाओ। Whenever you read theory, आपके सामने जब चार्ट रहेगा जिससे हमने एक्सप्लेनेशन किया है, इट विल बी easier for you. लिखने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी भी एक बार पूरा स्टैंडर्ड। केस स्टडीज एग्जैक्टली वैसा ही मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे लिखना है। डन। Share resources. Yes. Take this down. Then we will read the entire essay once again. Accounting and disclosure requirements. थोड़ा फास्ट करना बच्चों, क्योंकि हमको ऐसे पढ़ना भी है और एक ऐसे करना भी है, अपना एजेंडा है आज का, और टाइम पे आपको ब्रेक भी देना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। करेक्ट। ऋषभ तो ऋषभ है।
Done everyone? Yes, I want to you all to give me thumbs up to all those who are attending online, ताकि मुझे भी समझे आपका भी लिख के हो गया है. Do not be passive. समृद्धि का लिख के भी हो गया है. Good. Nice साक्षी. नहीं, I trust my students. स्क्रीनशॉट निकाला है क्या? नहीं, वो लोग लिखेंगे 100%. That's nice समृद्धि. समृद्धि बोल रही है कोई स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है. बुक का फोटो भेजो, क्या पूछ रही है वो? See, your friends are asking you to send the picture. हाँ? अगर ऐसे सवाल मुझे पूछा संदीप तूने, तो यही पंखा मैं ही. वो बोलते ना रामायण होने के बाद राम और सीता कौन, वैसा नहीं चाहिए अपने को ऑडिट में. When it's analytical procedures में सिर्फ, बाकी AP is always audit procedures only. अरे I cannot write the entire thing to fit in the presentation. ऑडिट में ये लिखने का फायदा आपको हर एक थ्योरी पेपर में होने वाला है. प्रैक्टिकल में भी फर्क पड़ता है. व्हेन यू आर यूज्ड टू राइटिंग, स्पीड तो बढ़ी जाती है एग्रीगेट में. Done everyone? Fraud risk factors. Done? चलो अब मैं बंद कर रही हूँ. चलो. We have to read the standard, ताकि आपको स्टैंडर्ड से भी कंफर्ट आ जाए. बराबर है ना? Yes. Oh my God, 1 minute. Yes, so related party. Come on, everyone focus. Yes, अब क्या बोला गया है? Meaning of related party. This essay deals with what? Auditor की क्या जिम्मेदारी है? What is auditor's responsibilities regarding related party transactions and transactions and performing an audit of financial statements. Okay? इनका क्या impact आता है? Now, meaning of related party has been as defined in applicable financial reporting framework. क्या problem हो रहा है? Yes. As defined in applicable financial reporting framework. Okay? Yes, Indian context में कहाँ पे है बताया गया, AS 18 में हमको बताया गया है. अगर आपके financial reporting framework में
अगर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बताया नहीं गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, देन यू हैव टू कम टू दिस स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड बताता है कि अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ओके, यस, ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या तो फिर कॉमन कंट्रोल होगा तो, क्लियर, यस, ठीक है। अब आगे, हाँ, highlight, I don't know why is it disappearing. Yes, आगे, nature of related party transactions. One minute. Yes, nature of related party transactions. Many related party transactions are in the normal course of business. In such circumstances, they carry no higher risk of material misstatements. However, they give rise to what? Higher risks of material misstatement. Okay? Yes. For example, related parties operate through an extensive and complex range of relationships and structures. Do you know about shell companies? Yes? What do you know about shell companies? बताओ. Exactly. मतलब क्या? Directly ऐसा नहीं खाना है, ऐसा खाना है. मतलब जैसे वोडाफोन के केस में हुआ था. Yes? Okay, उनको पता था कि कंपनी का ओनर कोई और. Okay, पर कंपनी के जो इंडियन सब्सिडियरी में उनके क्या थे? शेयर्स इन्वेस्टेड थे, बराबर है? ओके, तो फिर अगर वो डायरेक्टली ट्रांसफर करते तो वो इंडियन एसेट ट्रांसफर हुआ, इससे इंडिया में टैक्सेशन होता, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, कंपनी का सब्सिडियरी, उसका कंपनी, उसका एसोसिएट, उसका जॉइंट वेंचर, और उसके थ्रू उन्होंने शेयर्स परचेस किए. उसके वजह से वोडाफोन वन द केस और अपना कितना सारा टैक्सेबिलिटी चला गया. इसलिए सेक्शन 9 में जब आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, सेक्शन 9 डील्स विद व्हाट? डीम्ड इंडियन इनकम, डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, बराबर है? यस, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया है. इट इज वोडाफोन के केस की बदौलत. समझ में आया? ओके, यस. तो यहाँ पे उनका क्या कहना है? एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेंज आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे. ओके, यस. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इनइफेक्टिव हो सकते हैं रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, और नॉट कंडक्टेड अंडर नॉर्मल मार्केट टर्म्स एंड कंडीशंस. मतलब क्या? रिश्तेदार को ज्यादा डिस्काउंट, बाकी लोगों को नो डिस्काउंट पॉलिसी. समझ में आया? ठीक है. अब एज एन ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है, मैनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. ओके, यस, वेयर द एप्लीकेबल एफआरएफ एस्टैब्लिशेस सच रिक्वायरमेंट्स. ओके, तो ऑडिटर के लिए आरएमएम क्या होगा? इस रिलेशनशिप्स को क्या करो? आइडेंटिफाई करो और इनको डिस्क्लोज करो. समझ में आया? Yes, appropriately account for or disclose related party transactions. ठीक है. Then, even if the applicable FRF establishes minimum or even if the applicable FRF establishes minimal or no related party transactions, okay, auditor has to obtain an understanding of entities related party transactions. Okay, yes. अब आगे ऐसे 240 में there should not be fraud risk factors, and then there are certain limitations of audit. Okay, management unaware, बराबर है ना? Then collusion, concealment, manipulation by management, बराबर है ना? Yes, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है? Risk of material misstatements because of related parties is high. आगे audit procedures. What audit procedures auditor has to do? Yes, very 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 important. यहाँ पे लिख लीजिए. Very very important. Yes, focus. First, in case of identification of unidentified. मतलब क्या? हम यहाँ पे क्या रहे हैं? हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं. ओके, ढूंढ रहे हैं किसको? रिश्तेदारों को. समझ में आया? Yes. How do we do that? Yes. Request management to identify. ऑडिटर पहले क्या बोलेगा? रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को. अगर मैनेजमेंट फेल हुआ तो रीजन फॉर फेलियर क्या है?
Okay, yes. Then he will perform certain substantive audit procedures. What is meant by substantive audit procedures? Yes. वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? हम यहाँ क्या यूज करेंगे? वाउचिंग भी यूज कर सकते हैं, किसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, बराबर है ना. और एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी यूज कर सकते हैं. कैसे? कंपैरिजन करके कि अब तक इसके साथ इतना ट्रांजैक्शन था, अब इसके साथ हुआ है. ओके, तो इसका क्या कंट्रोल है क्या? ओके, गो टू द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, गो टू द कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर. ओके, बराबर है कि नहीं? गो टू द शेयर होल्डिंग रजिस्टर, समझने के लिए. क्लियर? ओके, यस. उसके बाद रिकंसिडर करो, रिस्क को रिकंसिडर करो. और अगर नॉन डिस्क्लोजर रहा मैनेजमेंट के, मतलब यहाँ पे क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर, बराबर है ना. ऐसा क्या हो गया कि मैनेजमेंट हमसे छुपा रहा है, बराबर है ना. देयर इज पॉसिबिलिटी दैट फ्रॉड माइट बी कंडक्टेड. आगे, in case of significant related party transactions, okay, yes, we have to inspect what? Very important, again, focus my dear students. We have to inspect underlying contracts and agreements. Okay, look for the business rationale. ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है, जैसे हम लोग फ्रॉड वाले चैप्टर में देखेंगे. यू हैव टू चेक, ओके, यू हैव टू चेक कि क्या ये जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, क्या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है क्या. अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब ट्रांजैक्शन को जिस हिसाब से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए था, वैसे आपने रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे आपने डिस्क्लोज नहीं किया या नॉन डिस्क्लोजर किया. गलत डिस्क्लोज करना या डिस्क्लोज नहीं करना, दोनों का क्या नतीजा होता है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्या यहां पे कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है क्या? कोई एसेट्स आपके एम्बेजल, चोरी हुए हैं क्या, गायब हुए हैं क्या? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस. देन क्या ट्रांजैक्शंस कंसिस्टेंट है किसके साथ? मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ. Do you understand whether these transactions are accounted and disclosed in accordance with financial reporting framework? Clear? Okay, yes. So these are the different audit procedures which the auditor has to perform. Okay, इसको मैंने simplified version में आपको बताने की कोशिश करी है. टेक्निकल लैंग्वेज, हाँ, क्या ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसलिए हमने इसका क्या किया, पीपीटी भी अच्छे से लिखा, देखा, किया भी अच्छे से, और इसको एक बार रीड भी कर दिया, बिकॉज यू गेट यूज टू दीज वर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. केस स्टडीज में इस पे एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स. क्लियर? ओके, यस. अब चलेंगे आगे. यस. अब जो मैं आपको लेके जा रही हूं, जिस स्टैंडर्ड के पास मैं आपको लेके जा रही हूं, यस, दैट इज एसए 560. ओके, 5 के बाद क्या आता है? 6, बराबर है ना. 5 के बाद 6, 5 के सब्सिक्वेंट 6, इसलिए सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए 5 6 560. समझ में आया? ओके, यस. सो इट इज, यस, सो 5 के बाद आता है 6, इसलिए उसके 5 के सब्सिक्वेंट 6, इसलिए हम कैसे याद करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, काम डाउन, याद करो कौन सा ऐसे एप्लीकेबल है. 5 के बाद 6, 5 के सब्सिक्वेंट 6, इसलिए ऐसे 5 6 0, दैट इज 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स. क्लियर? ओके, यस. अब व्हाट डज दिस एसे वांट टू टेल अस अबाउट? यस, यस, अंडरस्टैंड. अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे, यस, यहां पे 31 मार्च खत्म हुआ. ओके, फोकस बच्चों. 31 मार्च खत्म हुआ और यहां पे ऑडिट रिपोर्ट बन गया अपना. ओके, यस. अब समझने की कोशिश करो कि अगर इस दौरान यहां पे अगर कोई इवेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? यस, हम क्या करते हैं? इस इवेंट को क्या करते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में ही इसका इफेक्ट दे देते हैं. ओके, अगर इसका इफेक्ट ऑडिट रिपोर्ट में दिया तो ओके, अगर इसका इफेक्ट आपने
ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिया तो हम ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन एज द केस में भी इशू कर देंगे। करेक्ट? ओके, यस। पर उन चीजों का क्या? ओके, अब 31 मार्च यहाँ पे हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाया, अब उन इवेंट्स का क्या जो यहाँ पे होती है। ओके, यस, नेक्स्ट ईयर करेंगे। अब सिचुएशन अगर ऐसी है, समझने की कोशिश करो कि अगर ये इवेंट मुझे ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करने के पहले पता चलता, ओके, रादर यहाँ पे हम एफएस बनाते हैं, बराबर है कि नहीं? ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ बैकग्राउंड समझ लीजिए। ओके, यहाँ पे भी इवेंट होता है तो ये आइडियली नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए, बराबर है ना? पर समझने की कोशिश करो, अगर ये इवेंट मुझे पहले पता चलता, ऑडिट रिपोर्ट के पहले, तो आज मेरा जवाब कुछ और होता, बराबर है ना? क्या आपके बड़े भाई या बड़ी बहन है? यस। क्या उनकी शादी हो गई है? नहीं? ओके, बट कजन की कभी सुना होगा ना, पहले पता होता तो मैं शादी ही नहीं करती। इज इट अ सब्सिक्वेंट इवेंट? यस। समझ में आया? अगर ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले मुझे ये सिचुएशन पता होती, मुझे ये केस पता होता, तो आज मेरे ऑडिट रिपोर्ट का जवाब कुछ और होता। ओके, आज मेरा ऑडिट रिपोर्ट क्लीन नहीं होता, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर होता, या एज द केस में भी रिवर्स भी हो सकता है। समझ में आया? Yes, so we are going to deal in this essay, we are going to deal with those events which are subsequent to preparation of financial statements. बराबर है ना? See, कोई भी financial statements को बनाना अभी इतना simple तो है नहीं, right? तो क्या क्या होता है? Yes, अब financial statements को बनाना मतलब, हाँ, before I forget to tell you, जब हम essay 560 की बात करते हैं तो क्या आपने AS4 में ऐसा कुछ तो सुना है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट? यस और नो? बराबर है ना? ये तो वही हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट ही हो गया, बराबर है ना? सो व्हेनेवर वी स्पीक ऑफ SA 560 प्लस AS4, जैसे SA 550 प्लस AS 18 प्लस इंड AS 24, जब भी आप जवाब दोगे आपको वैसे ही जवाब देना है, बराबर है कि नहीं? राइट? इन द सेम वे जब आप ऐसे 560 की बात करो सब्सिक्वेंट इवेंट्स की, तो उसके साथ साथ आपको AS4 का रेफरेंस भी देना है, विच स्पीक्स अबाउट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्लियर? ओके, फोकस। अब समझने की कोशिश करो कि मानो 1 अप्रैल को अपना साल चालू हुआ, फोकस कीजिएगा, 31 मार्च को अपना साल खत्म हो जाता है। 31 मार्च को हम फाइनल अकाउंट्स जितना फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं उतना करते हैं, बराबर है ना? पर वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के लिए, बुक एंट्रीज पास करने के लिए अपने को कुछ वक्त लगता है, राइट? ठीक है, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया जाता है, बराबर है? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ऑडिटर को दिखाते हैं, बराबर है कि नहीं? वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, यस और नो? राइट? फिर हम AGM बुलाते हैं, बराबर है कि नहीं? यस और नो? क्या लॉ याद है कि नहीं? प्रोसीजर क्या करते हैं? एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, कंपनी क्या करती है? साल चालू होता है, साल खत्म हुआ, फिर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, सारे बुक एंट्रीज पास करेगी, सारे अकाउंट्स क्लोज करेगी, यस और नो? यस। फिर उसके बाद ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, बराबर है कि नहीं? फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, इसका एनुअल रिपोर्ट में बंडिंग करके सारा मेंबर्स को AGM की नोटिस और उसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट भेजेंगे, हाँ या ना? बराबर है? फिर उस AGM में सारे मेंबर्स अटेंड करेंगे और उस AGM में हम इस FS को अडॉप्ट करेंगे, यस और नो? यस और नो? बराबर है कि नहीं? यस। अब ये ऐसे क्या बोलता है, FS बनने के बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो आपके ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करे, बराबर है कि नहीं? आप कहोगे कि मैम हमारा क्या लेना देना, हमने एक बार ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, FS बन गया, उसके ऊपर हमने ऑडिट रिपोर्ट दिया है, बराबर है ना? बट योर ऑडिट रिपोर्ट इज व्हाट? It needs to give a complete knowledge, बराबर है ना? To users. Your users are going to take
major decisions based on your audit report. Do you understand? Yes. So अगर ऐसा कोई इवेंट हो जो आपके ऑडिट रिपोर्ट को अफेक्ट कर सके, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो? Yes, आप उस ऑडिट रिपोर्ट में, उस इवेंट को ऑडिट रिपोर्ट में कंसिडर करो. क्लियर? Okay. Yes. So events which happen subsequent to preparation of financial statements are known as subsequent events. Yes. अब कुछ इवेंट्स एडजस्टिंग है, कुछ नॉन एडजस्टिंग है. सुना है आपने? AS4 तो किया ही है. यस और नो? यस और नो? आवाज नहीं आया. किया है कि नहीं किया है? यस. ओके. यस. तो मैं आपको बताती हूं. AS4 क्या बोलता है कि ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो आइदर एडजस्टिंग हो सकता है या नॉन एडजस्टिंग. अब समझने की कोशिश करो, मैं आपको एग्जांपल देती हूं. यस. यस. मानो 1/4 को आपका साल चालू हुआ. ओके. यस. 31/3 को खत्म हुआ. 31/3 को आपने आपकी बैलेंस शीट बनाई. फुल फोकस. ओके. यस. आपने आपकी बैलेंस शीट बनाई. जब आपने आपकी बैलेंस शीट बनाई तो एसेट में डेटर्स था. ओके. नॉन करंट एसेट्स में, सॉरी करंट एसेट्स में डेटर्स था. उस डेटर्स में मिस्टर ए स्टूड देयर एज आवर डेटर. समझ में आया? ठीक है. अब 31 खत्म हुआ. आगे जाते ही ओके कुछ एक महीने बाद मिस्टर ए वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. मिस्टर ए वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. अगर 31 मार्च के पहले आपको पता चलता, फोकस, अगर 31 मार्च के पहले आपको पता चलता तो क्या आप इसका प्रोविजन करके रखते हैं? क्या आप इसका प्रोविजन करके रखते? ठीक है. पर आप सोचोगे कि मैम हमको तो बाद में पता चला है ना. यस. ओके. अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा, what is that accounting policy? Okay, what is the name of that accounting policy जो हमको बताता है कि you have to be prepared for the losses and not record profits? Prudence. बराबर है कि नहीं? You have to be prudent. मतलब क्या, खुद को पागल मत बनाओ. आप वहां पे मिस्टर ए को क्या लिख रहे हो? एज डेटर लिख रहे हो. आप उसको एसेट में लिख रहे हो. आप आज भी आशाएं बना के रखे हो कि आपको पैसा मिलेगा. आपको पता है 1 महीने बाद कि वो उसका इंसॉल्वेंट हो गया है. ओके. मतलब क्या आप उसको, आपके बैलेंस शीट में आपने उसको असेट लिखना चाहिए कि उसका प्रोविजन ऑफ लॉस, प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स करना चाहिए? बराबर है ना? सो इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो सच इवेंट्स आर नोन एज adjusting events. Clear? Yes or no? Everyone? Okay? Yes. But suppose another example. Okay? Yes. Up. Okay? Yes. Focus. I'll just hide myself for all those on the screen. 1 minute. हाँ ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, मैंने ओरली बोल दिया आपको. Yes. अब Say for example, 1/4 को साल चालू हुआ. 31/3 को साल खत्म हुआ. 1 महीने बाद ओके आपकी कंपनी की जो कार थी उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कार स्क्रैप हो गई. वो कार स्क्रैप हो गई. अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो कार स्क्रैप हो गई ओके क्या इसका आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? इज इट अफेक्टिंग योर बेसिक प्रूडेंस? Yes, come on. Is it affecting? No. क्या इसका प्रोविजन आपको करने की जरूरत है? No. तो यहां पे आपको सिर्फ डिस्क्लोजर करने से काम हो जाएगा. Yes. लॉस तो हो रहा है, बट क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है? क्या ये डिसीजन ऑफ यूजर्स को इफेक्ट करेगी? नो. क्या ये आपके हाथ में था? राइट? इसका डिस्क्लोजर करना नहीं. बराबर है कि नहीं? यस. डिड यू हैव कंट्रोल ओवर इट? ठीक है, आप बताओगे मैम मिस्टर ए के इंसॉल्वेंसी पर भी आपका कंट्रोल नहीं था, बट उसका इंटेंशन समझने की कोशिश करो. यू हैव टू बेसिकली फॉलो व्हाट? प्रूडेंस फॉर्म. आपको आपके सारे लॉसेस कवर करने हैं. बराबर है कि नहीं? यहां पे कार का नुकसान हुआ मतलब क्या? जिस दिन हमने बैलेंस शीट बनाई कार थी, हमने उसको चेक भी किया, ऑडिटर उसी कार से आया ओके ऑडिट करने के लिए. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. यस. बट उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कार स्क्रैप हो गई. राइट? दिस इज व्हाट अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट विच रिक्वायर्स डिस्क्लोजर. ये आप जब एएस पूरा करोगे तब ये और भी आपको क्लियर हो जाएगा.
31 मार्च को ही एडजस्ट करना है उसको। ओके फिर ऑडिटर क्या करेगा ये भी मैं बता दूं, रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, अब ऑडिटर है, ऑडिटर के हाथ में 31 मार्च का आपने बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया, ठीक है, उसमें दिख रहा है एसेट में कि डेटर है, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, ये इंसॉल्वेंट हो गया ना, मैनेजमेंट सुनो इसको डेटर से हटा दो और उतना प्रोविजन कर दो। ओके सो देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी अमेंडेड। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट्स के हिसाब से अमेंड करना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं किया तो हमको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड है क्या यहाँ पे मैनेजमेंट की कोई छुपी हुई साजिश है क्या। डू यू अंडरस्टैंड? ओके yes now let's go ahead further. Okay now auditor and subsequent events. So अगर हम auditor और subsequent events, okay जब auditor subsequent events को चेक करेगा तो auditor को क्या देखना है, सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट्स को इफेक्ट देने के लिए, वो एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है ये समझने के लिए ऑडिटर को पहले पता तो होना चाहिए। ऑडिटर ओके वेदर ऑडिटर को देखना है क्या मैनेजमेंट ने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है या नहीं। ये ऑडिटर कैसे कर पाएगा, ऑडिटर देखेगा बैलेंस शीट डेट के बाद 31 मार्च के बाद क्या इमीडिएटली कोई आपके क्लाइंट ने लोन लिया है क्या, शेयर्स इशू किए हैं क्या, शेयर्स रिडीम किए हैं क्या, शेयर्स बायबैक किए हैं क्या, राइट, कोई एसेट उसने डिस्कार्ड किया है क्या, डिस्ट्रॉय किया है क्या। डू यू अंडरस्टैंड? सो मैनेजमेंट की हरकतों से आपको पता चल सकता है कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। सो सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है क्या। अगर मैनेजमेंट ने अच्छे से आइडेंटिफाई किया तो ओके, अगर नहीं किया है तो उसको हाथ ऊपर करना है नहीं, ऑडिटर हैज टू आइडेंटिफाई। Clear? Yes? Okay. Yes. Then events identify होने के बाद he has to see whether adjusting event है कि non adjusting event है, क्योंकि adjusting event के लिए तो सिर्फ अपने को क्या करना है, adjusting event के लिए सिर्फ अपने को adjust करना है, non adjusting के लिए तो सिर्फ disclosure है notes to accounts में, बराबर है ना। पर adjusting रहा तो it is going to affect the books of accounts and the financial statements. Yes or no? Right? Okay. ठीक है। देन ये तो वो चीजें हो गई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद पर ऑडिट रिपोर्ट के पहले हुई, उनका तो ऑडिटर ने बोल बुला के करा लिया, ऑडिट रिपोर्ट में उसके हिसाब से करा लिया। बट कुछ चीजें ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी तो हो सकती है। अब हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, उसके बाद ऐसी कुछ इवेंट हुई तो ओके तो उनका ऑडिटर को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी ऑडिटर की मोटा मोटी नहीं बनती। समझ में आया? ओके yes so yes come on subsequent events मतलब क्या, the events which happen after the preparation of financial statements. Okay yes such events which may be before audit report or after audit report, right. Subsequent events are of two types, adjusting non adjusting. Adjusting events requires adjustment, right. For example मैंने आपको example दिया provision for doubtful debts. Okay yes and non adjusting events require only डिस्क्लोजर, उसका भी एग्जाम्पल दिया, कार स्क्रैप हो गई, ठीक है ठीक है। जब ऑडिटर सब्सिक्वेंट इवेंट्स के साथ डील करता है तो ऑडिटर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई अगर मैनेजमेंट ने ठीक से किया है तो ओके, नहीं किया तो आपको करना है। आप आइडेंटिफाई किए हुए इवेंट को सेग्रीगेट करो कि वो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। अगर वो एडजस्टिंग है तो उसको एडजस्ट करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर नॉन एडजस्टिंग है तो उसको सिर्फ डिस्क्लोज करो। देन लेटर कुछ ऐसे फैक्ट्स आफ्टर डेट ऑफ एआर भी आ सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद, उसके लिए ऑडिटर को भी कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्लियर? ओके अब चलते हैं आगे। ऐसी मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑडिटर को प्रोसीजर करना है, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया, ओके सेग्रीगेट कर लिया एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में, अब उसको ऑडिट प्रोसीजर्स करना है। सबसे पहले he has to identify, बराबर है ना। सबसे पहले वो मैनेजमेंट को पूछेगा कि आपने कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई किया है क्या। मैनेजमेंट ने जो आइडेंटिफाई किया है वो दे देगा, अगर मैनेजमेंट ने नहीं आइडेंटिफाई किया तो ओके। तो पर क्या ऑडिटर अपनी आंखें बंद कर लेगा? नहीं, ऑडिटर ऑल्सो हिमसेल्फ हैज टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ओके वो कैसे करेगा? मैनेजमेंट को इंक्वायर करो, मैनेजमेंट से बातें करो। हाँ फिर अब तो बैलेंस शीट बन गई, अब आगे आपका क्या प्लान है? ओके मैनेजमेंट बताएगा हाँ हम तो लोन लेने वाले, इमीडिएटली सब्सिक्वेंट इवेंट,
उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। समझ में आया? ओके, यस। सो यू हैव टू इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। जरूरत पड़ी तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन अगर लेना पड़े तो भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन उसमें आप ले सकते हो। आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, बजट्स को रीड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 31 मार्च को आपका क्या हुआ, साल खत्म हुआ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो पीरियड खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब 30 जून को क्या आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं? यस। क्या आपको क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स फाइल करना पड़ता है? एब्सोल्युटली यस। तो उसमें देखो क्या मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, बराबर है ना, क्या मेजर डिसीजंस हुआ है, कैश फ्लो कहां से जनरेट हुआ है, यस और नो। तो क्या वो आपको बता पाएगा कि मैनेजमेंट ने बिल्कुल बैलेंस शीट डेट के बाद क्या क्या हरकतें करी है? Yes. Will it assist auditor to identify subsequent events? Yes. Clear? Yes or no? ठीक है, आगे। Read minutes post balance sheet date. Minutes मतलब क्या? जो भी आपके मीटिंग्स के कंक्लूजन्स होते हैं उसको आप पढ़ो, मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्योंकि मेजर डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं? मीटिंग्स में ही लिए जाते हैं। एंड ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट ने जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई किया है उसको उसका पूरा नॉलेज ऑडिटर को दिया है। क्लियर? यस, ओके, यस। फिर ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज है? कंसिडर द इफेक्ट्स ऑफ कंसिडर द इफेक्ट्स ऑफ एसई मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सी, ऑडिटर को सबसे पहले मैनेजमेंट को पूछना है, मैनेजमेंट ने बताया तो ठीक, नहीं तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना है। ऑडिटर को कैसे आइडेंटिफाई करना है? ही हैज टू इंक्वायर मैनेजमेंट, देन कम ऑन एक्सपर्ट का ओपिनियन लो। मैनेजमेंट ने नहीं बताया, एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए तो आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो। देन यू कैन रीड द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जरूरत पड़ी तो यू कैन रीड मिनट्स पोस्ट बैलेंस शीट डेट, बराबर है? यस। एंड ही कैन ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। ठीक है, अब ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया, फिर इवेंट सामने आने के बाद ऑडिटर को उसका देखना है कि उसका एफएस पे क्या इफेक्ट होगा और एआर पे क्या इफेक्ट होगा। मतलब अगर एडजस्टिंग है तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ये एफएस में, बराबर है, और अगर सिर्फ नॉन एडजस्टिंग है तो एफएस में उसका डिस्क्लोजर चाहिए, बराबर है? ठीक है, अगर उन्होंने ठीक से किया है तो ओके, अगर ठीक से नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को खुद करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? यस। सो अब अगला पार्ट आता है रिपोर्टिंग का। ठीक है, यस। अब रिपोर्टिंग करते वक्त फुल फोकस, बहुत सिंपल है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझ लो तो इट विल बी टू सिंपल, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अननेसेसरीली। इवेंट इज बिटवीन एफएस डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले, बराबर है कि नहीं? ओके। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर नॉर्मल अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा, बराबर है कि नहीं? यस और नो? और उसको इनकॉर्पोरेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब इवेंट इज बिटवीन एफएस डेट एंड इश्यू डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? कौन से स्टेज पे? चलो, यस, बिटवीन एफएस डेट मतलब एफएस बन चुका है, ओके, एफएस बन चुका है, ठीक है, ओके, यस। और एआर को अभी क्या करना है? एआर भी हमारा, अब हम एआर बना रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो इस बीच में यू हैव टू डिस्कस इट विथ मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ वो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। तो उनको पहले हमको बताना है कि बाबा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो डिस्कस विथ मैनेजमेंट। डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट और नॉट, मतलब एडजस्टिंग इवेंट अगर कोई होगा तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। एंड हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू एड्रेस द मैटर इन एफएस, ओके, यस। और मैनेजमेंट क्या उसका अमेंडमेंट करने वाली है या नहीं? समझ में आया? ओके, ठीक है। इफ मैनेजमेंट चेंजेस द एफएस, तो जो भी चेंजेस हुए हैं उसके लिए हमको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? यस। और हमको न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा, यस, ओके। अब न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो मतलब इट इज इन सपोर्टिंग विद द अर्लियर ऑडिट रिपोर्ट, डू यू अंडरस्टैंड? सो इट इज नोन एज ड्यूअल डेटेड रिपोर्ट, ओके। हम एक ड्यूअल डेटेड रिपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब क्या? ओरिजिनल एआर दे दिया है, ओके, यस, उसके रिलेटेड और एक एआर इशू करें, ओके, यस, उसको ड्यूअल डेटेड एआर बोलते हैं। या तो फिर आप क्या करो? एआर इशू करना है, ओके, एआर में क्या ऐड करो? ईओएम पैरा,
एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ओके, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो आपके यूजर्स को विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट. क्लियर? क्लियर? ओके, यस. तो हमने अब तक क्या देखा? बिटवीन एफएस डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट, फिर बिटवीन एफएस डेट एंड इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, अगर इशू डेट ऑफ एआर लिख लेती हूँ यहाँ पे, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. सी कैसे होता है, मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ. बिटवीन एफएस डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट डेट, मतलब यहां तक ऑडिट रिपोर्ट बना नहीं है. यहां पे ऑडिट रिपोर्ट बन चुका है, सिर्फ इशू नहीं हुआ है. मतलब आपने लोगों को भेजा नहीं है एजीएम के नोटिस के साथ. समझ में आया? ओके, मतलब आपके हाथ में अभी तक ऑडिट रिपोर्ट है. क्या ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर सकते हो? हाँ. क्या आप ड्यूअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट कर सकते हो? हाँ. क्या आप ईओएम पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर सकते हो आपके ऑडिट रिपोर्ट में? हाँ. ओके, पर अगर आफ्टर इशू डेट ऑफ एआर होगा, एआर इशू होने के बाद कुछ होगा, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, आप सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हो. बराबर है कि नहीं? सो इन दैट केस ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? सॉरी, हाँ, यहाँ पे सेकंड पार्ट बाकी है अभी तक. ठीक है, हम पहले सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं कि एफएस डेट और इशू डेट, मतलब एआर बन चुका है बट इशू नहीं हुआ. ओके, तो उसमें एडजस्टिंग इवेंट होगा, और जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है यू हैव टू गो टू एंड डिस्कस विद मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को बताओ मैनेजमेंट एडजस्टिंग इवेंट है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने पड़ेंगे. अगर मैनेजमेंट मान जाए तो बहुत अच्छा, मैनेजमेंट एफएस चेंज करेगा. जो भी चेंज हुआ है उसमें हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, उसको हम चेक करेंगे, और हम अपना नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करो या ड्यूअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट इशू करो, या अपने एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम पैराग्राफ डाल के आप उसको इशू कर दो. क्लियर? ठीक है. इफ मैनेजमेंट डजंट चेंज, ओके, मैनेजमेंट डजंट चेंज, ओके, यस, तो आप मैनेजमेंट को बोल दो, देखो एक काम करो, हम गलत ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं दे सकते. ओके, ऑडिट रिपोर्ट बन गया है पर सिर्फ इशू हुआ है क्या? नहीं हुआ. तो क्या वो अभी तक अपने हाथ में है? हाँ. क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ. तो आप ऑडिट रिपोर्ट इशू मत करो, रुक जाओ, रोक लगा दो ऑडिट रिपोर्ट के इशू करने तक. ओके, स्टिल इफ द मैनेजमेंट इशूज अनकरेक्टेड एफएस, देन यू शुड टेक लीगल एक्शन. बराबर है ना? क्योंकि कल अगर ऑडिट रिपोर्ट पे किसी ने भरोसा किया तो who will be held responsible? You will be held responsible. So you have to take legal action if management does not change. Clear? ठीक है. अगर कोई इवेंट आफ्टर इशू डेट ऑफ एआर आपके नजर में आता है तो आपको सेम इसके जैसे करना है. ओके, यस, सेम इसके जैसे करना है. Ensure that anyone in receipt of previously issued financial statements together with audit report is informed of the situation. मतलब क्या करो आप? ओके, आपने ऑडिट रिपोर्ट आपका इशू हो गया है, सबके साथ सर्कुलेट हो गया है, तो जिनको जिनको जो भी आपके मेंबर्स है, जिनको आपने क्या दिया है, जहां पे आपने वेबसाइट पे अपलोड किया है, बराबर है कि नहीं? यस, तो वहां पे हर जगह पे आप इंफॉर्म करो कि ऐसा ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, और अगर ये हमको पहले पता होता तो हम उसको ईओएम पैरा में या अदर पैरा में हाईलाइट करते. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस एवरीवन. ओके, सो नहीं, हमको उसको उनको बताना है, इन्फॉर्म करना है उनको. हाँ, यस यस यस. क्लियर एवरीवन? यस. Is it easy? Is it easy? Yes? Come on. It's time to take down this essay. Come on. अब आपको होमवर्क के लिए स्टैंडर्ड पढ़ के आना है. ओके? यस, रीडिंग द स्टैंडर्ड विल बी अ होमवर्क. जितना सिंप्लीफाई कर सकूं मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है.
Done, my dear students? यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ्स. कुछ ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, क्या पता क्या हो गया. यस, बाकी है अभी तक. यहाँ पे तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है. यहाँ पे डिस्क्लोजर इज इनफ. नीचे क्या लिख दूँ इधर, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है आपको. डिस्क्लोजर इज इनफ. यहाँ पे डिस्क्लोज करके नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको प्रोविजन करना पड़ेगा फॉर बैड डेट्स. नीचे का जो दिख नहीं रहा है वो मैंने लिख दिया है इधर. Please do not take a screenshot or anything of this sort. Be committed to what you're doing. Commitment always bears fruits, my dear students. अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, याद रखना. बाद में लिखेंगे वो बाद में कभी नहीं आता. Unnecessarily चीजें पाइल अप हो जाती है. Done, everyone? अब तो हो ही गया होगा लिख के. आज संदीप का जल्दी हो गया. मैंने रिपोर्टिंग की जानबूझ के एक अलग स्लाइड बनाई है.
CFS मतलब cash flow statements. Okay, shall we go ahead? Yes, and the last slide.
Done, all of you? Yes. Yes, let me inform you all. Today audits class would be right now, it won't be there in the afternoon. जैसे हम लोग evening में लेते थे 4:30 को, class नहीं रहेगा. First and second class नहीं रहेगा. Class directly begin होगा third को 9:30 in the morning would be the session on third, first session. So be there, I will be waiting for you. And yes, my dear students, wish you a very, very, very happy new year in advance.